আমার উদ্দেশ্য কোনো ভাষাকে বা কাউকে আঘাত করা নয়, কারোর মনে আঘাত পৌঁছানো নয়, কিন্তু এই প্রজন্ম বা আসছে যে প্রজন্ম পরবর্তীকালে যে প্রজন্ম আসবে এটা আমাদেরই কর্তব্য। আমি অনেক বাড়িতে দেখেছি আমরা বাঙালিরাই মানে এই প্রজন্ম মানে আমরা নিজের কথা বলছি, আমি বাংলার মাঝে অন্য শব্দ ঢুকাচ্ছি যেটা অন্য ভাষা থেকে এসেছে। এই জিনিসটা আমরা যদি পাল্টাতে পারি, আমরা কত বিখ্যাত বঙ্গ বিপ্লবীর সঞ্চারণ বিখ্যাত বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কার্যকলাপ সন্ত্রাসী তাকে বাংলা ছাড়তে বাধ্য এবং আমৃত্যু সুভাষ রাঁচি থেকে এবার অন্যত্র বিচরণ। ছন্দের জাদুকর সুনির্মল বসুর আবাস কোলারমা। বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর মামা তিনি। মামা বাড়িতে আসা যাওয়া ছাড়াও বুদ্ধদেব কখনো বন ভ্রমণে, কখনো শিকার অভিযানে এখানে তার প্রথম ব্যাঘ্র শিকার এখানেই। তার রচনা ঝাড়খণ্ডের অরণ্য সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। এরপর পালামোর পথে বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও কর্মসূত্রে এখানে। ভারত প্রেম কথা খ্যাত সুবোধ ঘোষ কর্মসূত্রে একদা ঝাড়খণ্ডে। হাজারিবাগে বাস কন্ট্রাক্টর পুষেছিলেন পথে পাওয়া এক ব্যাঘ্র শাবককে। এবার আসা যাক সেই অমীয় ব্যক্তিত্বের কথায় যার পদধূলিতে ধন্য ঝাড়খণ্ড। বাঙালির হিয়া অমীয় মথিয়া, নতুবা অরণ্য পথে তিনি আসবেন কেন? প্রচলিত পথ ছেড়ে অরণ্য পর্বতময় সাপদ সংকুল দুর্গম পথে তিনি এসেছিলেন। আসলে প্রেমাবতারের উদ্দেশ্য ছিল যুগ যুগ বঞ্চিত অরণ্যচারী মানুষ ও বন্য প্রাণীদের দেব দুর্লভ ভগবত প্রেমের বিশ্রাম নেন ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথ ধামে। এখানে এক আদিবাসী গ্রামে ভ্রমণকালে দরিদ্র মানুষগুলির দুরবস্থা দেখে ভারাক্রান্ত হয় তার মন। মথুর বাবুকে তিনি বলেন এদের পেট ভরে খাওয়াতে, একই না গিয়ে এই দুস্থ মানুষদের সঙ্গে থাকার জন্য মনস্থ করে। শেষে এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা যজ্ঞের দৃষ্টান্ত রাখেন। বিবেকানন্দ বহুবার এসেছেন বৈদ্যনাথ ধামে। এখানেই তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত কবিতা সখার প্রতি। এখানে এসেছেন শ্রী শ্রী মা শারদামণি এবং রামকৃষ্ণ পার্শ্বদের অনেকেই। ধন্য ঝাড়খণ্ড। বিবেকানন্দ সেই ব্যক্তিত্ব যার সন্ন্যাসী আত্মা জামশেদজি টাটাকে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাস্তবায়নে প্রভাব। বাঙালির স্মরণীয় শব্দ, কেউ তীর্থ ভ্রমণে, কেউ স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে, কেউ প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিভোর করতে, আবার কেউ বা গ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যে 65 জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে স্কোয়াডটি ছিল। মাত্র 21 বছর বয়সী সুরেশ চন্দ্রশীতে অস্ত্রাগার অভিযানে জড়িত বিপ্লবী সুরেশবাবু প্রথমে ধরা না পড়লেও বছরখানেক পরে ধরা পড়ে যান। তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রলুব্ধ করা হলেও কোনো কমরেডের নাম প্রকাশ করে। পরে তাকে কারাগার থেকে সরিয়ে ছিল সব কিছু। তাই শুরু থেকে একটি স্বাধীন ব্যবসা স্থাপনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ইউরোপিয়ান এবং ধনী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে জুতো কেনা একটি বিলাসী, অথচ আসন নুড়িযুক্ত কাপড় ভরা রাস্তা, নোংরা ময়লা গলিপথে খালি পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের পায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অধিকাংশই বিভিন্ন পায়ের রোগে ভুগছে। তাই তিনি টেকসই অথচ সহজলভ্য
জুতো তৈরির কারখানার কথা মনে মনে পরিকল্পনা করে। প্রস্তুতির জন্য ডক্টর রুমিলা ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত প্রণব দরিকা মহাশয়কে মঞ্চে ডেকে নিতে চাইছি। গানটির নাম হলো বাঁকুড়ার বাসে। নমস্কার। পরবর্তী অনুষ্ঠান পশ্চিম সিংভূমের চক্রধরপুর শাখা। আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাঝেই একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ঝাড়খণ্ড সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী বান্না গুপ্ত মহাশয়। তাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। মঞ্চে আনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি রাজেশ রায়, শ্রী অচিন্তম গুপ্ত, সভাপতি বঙ্গ উৎসব সমিতি। তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অঙ্গবস্ত্র প্রদানের জন্য অঙ্গবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জি। এরপরে তারা অঙ্গবস্ত্র তুলে দেবেন রাজকুমার। ही बोलते हैं प्यार से। हमारे घाटशिला से आए नेता तापस भाई, जमशेदपुर के प्रभात खबर के संपादक हमारे व्यक्तिगत बड़े भाई संजय भाई, हमारी बहन मेनका जी, अपर्णा बुआ जी, हमारे साथी हमारे दोस्त संजीव आचार्य जी, घोषदा, वल्लभदा,
हमारे बहुत सारे अपर्णा दी को भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका हम व्यक्तिगत नाम लेकर बोल सकते हैं। संजय घोष जी भी उधर से देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा नाम मेरा नेता बोल रहा है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभेच्छा। আমি চেষ্টা করছি অল্প অল্প বলতে পারবো, কিছু ভুল হলে আমাকে মাফ করে দিবেন। আমি বেশি যোগাযোগ করতে পারবো না, অল্প চেষ্টা করছি। আমি শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি, बहुत शुभेच्छा। और बंग भाषा को हम विशेष करके बंग भाषी समाज को हम ये मानते हैं कि ये समाज बहुत संवेदनशील समाज है और ये समाज अन्याय के प्रतिकार में न्याय के पक्ष में खड़ा होने वाला समाज है। और कभी भी चाहे वो क्रांति भी यदि हुई है तो क्रांति करने वाले लोग भी बंग भाषी लोगों ने सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूकने का काम किया है। न वो अन्याय करते हैं, न अन्याय जुल्म सहना जानते हैं। यदि कोई बहुत मजबूत आदमी है, पहलवान टाइप का आदमी है और वो कोई गरीब को मार रहा है, एक बार बगल से कोई बंगभाषी दादा पार होगा, पतला दुबला सा कमजोर सा, तो देखेगा कि पहलवान जी एक गरीब आदमी को मार रहे हैं। फिर थोड़ा दूर आगे जाएगा, फिर मन में कुछ होगा कि काहे मारा, क्यों मारते बाबा, ये तो अन्याय हो रहा है। फिर थोड़ा दूर जाएगा, रहा नहीं जाएगा, फिर घूम के आएगा, आकर बोलेगा दादा क्यों को छुए में, ये गलत कर रहे हैं आप इस आदमी को मार के। चाहे उसके बदले में वो पहलवान जी उसको दो फैटार मार दे, लेकिन उसके मन में ये चीज है कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। तो मैं ऐसे समाज को बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूँ, जो समाज संवेदनशीलता के साथ, समाज जो है हर वैसे चीज के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि कला और संस्कृति आपके अंदर में कूट कूट के भरी है। जो सामान्य लोग, हम लोग, एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि बहुत से घर में लोग झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू के पीछे वाला जो मूठ होता है वो मूठ को बहुत लोग फेंक देते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं बंगभाषी, मैं उनके घर में जाता हूं तो देखता हूं कि वो मोर का आकृति बना दिए और बड़ा सुंदर सा, तो देखा कि वो झाड़ू का पीछे वाला जो टूटा वाला है उससे जोड़ जोड़ के मोर बना दिया, कुछ जो है कलाकृति बना दी। तो ये हमारे भाषा भाषी के अंदर कला संस्कृति है। जहाँ कला और संस्कृति है वहीं क्रांतिकारी लोग भी हैं। और इस देश का आजादी का इतिहास इस बात को लेकर हम लोगों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देगा कि चाहे वो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का पार्क हमने कदमा में बनाया। जब हम पार्क को वहाँ सफाई कर रहे थे तो लोग कह रहे थे, उस समय हम पिछली बार जब विधायक बने थे तो लोग कह रहे थे लगता है बन्ना गुप्ता इस जगह को, कचरा था वहाँ, तो लगता है बन्ना गुप्ता इस जगह को छेकेगा, अरे ये जगह दखल करेगा। तो कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन वहाँ नेताजी का एक पार्क बना है। और मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूँ कि एक दिन वहाँ नेताजी की स्मृति में वहाँ एक विशाल काय नेताजी के जीवनी पर हम लोग वहाँ एक बड़ा संग्रहालय बनाएंगे ताकि नेताजी को लोग पढ़ें और समझें। नेताजी केवल नेता नहीं थे, एक आदर्श और विचार भी था। खुदीराम बोस एक नेता नहीं, एक सामाजिक जीवन नहीं, एक चेतना भी थी, एक संवेदनशीलता थी। तो उनको पढ़ने से, समझने से हम जो है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं पूछ रहा था, छोटी बहन है अपर्णा, उसे पूछ रहा था कि ये आयोजन, तो कहा कि ये आयोजन को हम समग्र रूप से सभी लोगों को मिलकर करना चाहते हैं और इसी का एक जीवंत जो है रूप है। मैं समझता हूँ ये अच्छी परंपरा है, बढ़िया परंपरा है। और जब कभी भी, चूंकि अभी तो हमारे बाबा तो मरा गए थे, अपना कदमा के जितने लोग हैं जानते हैं, लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे
ये मिष्टी दुकान जो चल रहा है मथुरा मिष्ठान भंडार, ये बंगभाषी लोग का जो है विशेष कृपा से चल रहा है। तो वही ताले पे हम खड़े हुए हैं, चाय और सिंगाड़ा और मीठा बेच के। हम ही तो मिष्टी बिकी ना, अभी भी जो लोग कदम में जाते हैं तो देखते होंगे कि भाई हम मीठा बेचते हैं, चाय बेचते हैं। तो कदमा में हमारा बंगभाषी समाज बहुत है जो ज्यादा करके मीठा खरीदता है। तो हम लोग हमेशा जो है जब भी एक ही पूजा को हम बहुत ज्यादा प्रेम से मनाते हैं, और जब दुर्गा पूजा आती है तो हम 3-4 दिन बोलते हैं कि नो पॉलिटिक्स, अभी पॉलिटिक्स नहीं, अभी इंजॉयमेंट करना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ और बहुत धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। देखिए चकुलिया से भी बहुत लोग को मैं देख रहा हूँ, पोटका की भी जो है, पोटका की भी हमारी मुखिया आई हुई है, चकुलिया से भी हमारी बेटी आई हुई है, वो आके हमारे इसमें कार्यक्रम में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, ये अच्छी परंपरा है। और जब कभी भी आपको बन्ना गुप्ता की जरूरत पड़ेगी, आपका भाई बेटा बनकर, आपके परिवार का सदस्य बनकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, रात 12 बजे भी रहूंगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया। অনুরোধ জানাবো মঞ্চের সামনে তাদের আসন গ্রহণ করার জন্য। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে অনুরোধ জানাবো ধন্যবাদ জানিয়ে মঞ্চের সামনে আসন গ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ। না এরপরে আমাদের দাদা একটা ফটো নিবেন।